عشق امتحان لیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں آج سے 10 مہینے قبل ایک مجاہد کو، سنیت کے شہر کو، جسے آج پوری دنیا مفتی سلمان ازہری کے نام سے جانتی ہے، اللہ اللہ، وہ نگر نگر ڈگر ڈگر ناموس رسالت پہ کام کرتا رہا اور وہ شعر کہتا رہا، اگر ہمارے مکانوں کو توڑو گے ہم برداشت کریں گے، ہمیں گالی بکو گے ہم برداشت کریں گے، ہمارے گھر والوں کو ٹورچر کرو گے ہم برداشت کریں گے، لیکن مصطفیٰ کی ذات پر، مصطفیٰ کی شان پر اگر انگشت نمائی کی جائے گی تو برداشت نہیں کیا جائے گا. اللہ اللہ، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو 10 مہینے جیل میں رکھا گیا. اس مرد مجاہد نے 10 مہینے میں بڑی مصیبتیں اٹھائی، درد و الام کا سامنا کیا، لیکن ثابت قدم رہا. اللہ کی مدد پہنچی، مصطفیٰ نے نظر کرم فرمایا اور وہ شیر جیسا گیا تھا ویسا آ کر کے یہ اعلان کر رہا ہے، لوگوں یاد رکھنا، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بلدے پور کے زندہ دل لوگوں، ایک بات یاد رکھنا، تم پڑھے لکھے لوگ ہو اور تم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، سائنس کے تعلق سے تم نے کتابیں پڑھی ہیں، جغرافی کے تعلق سے تم نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لینا، قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں، قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں. اور جس قرآن کے کسی ایک نقطہ، کسی ایک زبر زیر پر کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں، وہ قرآن جو ہدی للناس ہے. اللہ تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. اللہ اپنے دوستوں کے تعلق سے یہ بیان فرماتا ہے. اس کے دوست کون ہوتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں تو محبتوں سے ایک مرتبہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، وہ اللہ کے دوست کہے جاتے ہیں. اللہ اپنے دوستوں کے تعلق سے یہ بیان فرماتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کے تعلق سے اپنے بندوں کو خبردار فرماتا ہے، آگاہ فرماتا ہے، بندوں میرے بندوں میں وہ میرے بندے جو میرے دوست ہیں، جو میرے محبوب ہیں، جو میرے قریب ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے. اللہ آپ ذرا توجہ کریے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. آپ تعجب کرو گے، کہو گے مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں جیسی چیزوں سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا جسم و جسمانیات سے کوئی تعلق نہیں. تو سنیے گا، آپ میری طرف توجہ کریں، سنیے. اللہ
میں نہیں کہتا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں, جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, اللہ کا دوست ہو جاتا ہے, اللہ کا ولی ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالی اپنی طاقت و قوت کا جلوہ اس کے ہاتھ میں ودیت فرما دیتا ہے. اب اس کا پکڑنا گویا رب کا پکڑنا ہو جاتا ہے, اس کا دیکھنا گویا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے, اس کا بولنا گویا رب کا بولنا ہو جاتا ہے, اس کا چلنا گویا رب کا چلنا ہو جاتا ہے. جب کسی کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب وہ زمین پر نگاہ ڈالتا ہے تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے, آسمان پر نگاہ ڈالتا ہے تو عرش اعظم تک دیکھ لیتا ہے. اللہ اللہ نبی ارشاد فرماتے ہیں, اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, معرفت الہی سے دیکھتا ہے. اللہ اللہ آپ سنیے گا, ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, ان کے در کا کھانے والے غلام ہیں. بتائیں ہے نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف ہمارے لیے عزت کے قابل ہے. اللہ اللہ لیکن دیکھیں, جب اس حدیث پاک کو ایک یہودی نے سنا نا, تو اس یہودی نے سوچا یار بات سچی ہے یا ایسے ہی ہے؟ کیا واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ کیا واقعی مومن معرفت الہی سے پہچان لیتا ہے؟ اللہ اللہ بندے پور کے زندہ دل لوگوں ذرا میری طرف توجہ کریے گا, اگر آپ کے ایمان میں انقلاب پیدا نہ ہو جائے تو کہیے گا اللہ اللہ. اس یہودی نے سوچا یار حدیث یہ سچی ہے یا ایسے ہی کسی نے گڑھ دی ہے؟ اللہ اللہ اس نے سوچا اگر حدیث سچی ہے تو لاؤ آزما کر کے دیکھتے ہیں. اس نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھا, مسلمانوں جیسا لباس پہنا اور مسلمانوں کی بستی میں پہنچ گیا, اور جو مسلمان اسے ملتا یہ اس کے سامنے یہ حدیث پاک پڑھتا, اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ, اور یہ کہتا آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیے. اللہ اللہ جس کے سامنے یہ پڑھتا وہ اس کا ترجمہ بتا دیتا. اللہ جو مومن کامل سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ اللہ یہ پوچھتا رہا بہت سارے مسلمانوں سے اس نے اس حدیث کا مطلب پوچھا. اللہ اللہ سارے لوگ اس کا ترجمہ بتا دیتے. یہ دل ہی دل میں سوچتا یار یہ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں, میں مذہب سے یہودی ہوں, یہ پہچان نہیں پا رہے ہیں, میں نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھ رکھا ہے, یہ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں, میں نے مسلمانوں جیسا لباس پہن رکھا ہے. اللہ اللہ یہ پوچھتا حضرت جنید بغدادی کی بستی میں پہنچ گیا. جہاں حضرت جنید بغدادی رہا کرتے تھے وہاں پہنچ گیا. حسن اتفاق حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہو گئی. اللہ اللہ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی نا, یہ بڑے کرو فر میں بولا, جنید میں نے تمہارا بڑا نام سنا ہے, بڑی شہرت سنی ہے, بڑا چرچا سنا ہے, تم اللہ والے ہو, اللہ کے دوست ہو, اللہ کے محبوب ہو, میں نے تمہارے نام کا چرچا سنا ہے. اے جنید میں تم سے آج ایک حدیث کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پڑھ کون سی حدیث پاک ہے؟ یہ پڑھتا ہے اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. اللہ اللہ یہودی نے عرض کیا اے جنید بغدادی اس کا ترجمہ بتا دیجئے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے ملاحظہ کرتا ہے. یہودی عرض کرتا ہے جنید کیسے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے جنید تجھے دیکھ رہا ہے, جیسے جنید تجھے ملاحظہ کر رہا ہے. اللہ اللہ حضرت جنید بغدادی کی زبان سے جب اس نے اتنا سنانا یہ پانی پانی ہو گیا اور شرمندگی سے بولا جنید کیا مطلب؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میری طرف توجہ کریں, جملہ دینے جا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مطلب صاف ہے, جنید نے معرفت الہی سے پہچان لیا ہے, اللہ کے نور
से पहचान लिया है तू मजहब से यहूदी है, मुसलमानों जैसा अमामा बांध करके आया है, मुसलमानों जैसा लिबास पहन करके आया है, तू आजमाइश के लिए आया है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं अपने रब की कसम खा करके कहता हूँ बता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है। अर्ज करने लगा हाँ हुजूर मैं मजहब से यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था। अर्ज करने लगा हाँ हुजूर आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी जलाल में इरशाद फरमाते हैं ए यहूदी बता अब तेरा क्या इरादा है। कदमों में गिर के बोला है जुनैद हाथ बढ़ाओ कलमा पढ़ाओ मुसलमान बनाओ। अब मुसलमान होने का इरादा है। मैंने पहचान लिया है, मैंने जान लिया है जब बगदाद में रहने वाले जुनैद की शान का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत नारे तकबीर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह। के लोगों इसने कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया और मुसलमान होने के बाद में हजरत जुनैद की बारगाह में अर्ज किया जुनैद अब नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ करके, अब मैं तुम्हारे पास रहूंगा तुम्हारी सोहबत में रहूंगा। अल्लाह अल्लाह ये एक मुद्दत तक हजरत जुनैद बगदादी की सोहबत में रहता रहा। एक दिन ये बोला ए शेख जुनैद बगदादी अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया तेरी बड़ी आदत है सवाल करने की, बड़े सवाल करता है, पूछ क्या सवाल है, पूछ क्या पूछना चाहता है। अल्लाह अल्लाह वो अर्ज करने लगा ए जुनैद बगदादी जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था मैंने इस हदीस पाक का तर्जुमा बहुत से मुसलमानों से पूछा था लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं पाया था कि मैं हूँ कौन। अल्लाह अल्लाह हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना ना मुस्कुराए और इरशाद फरमाया आप फरमाते हैं अपनी जबान को खामोश कर ले, अपनी जबान को लगाम दे कि जिन जिन के पास में पहुंचा था वो अल्लाह के दोस्त थे। हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने मार्फत इलाही से तुझे पहचान लिया था लेकिन इस वजह से खामोश रहे थे कि तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। पता चला निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह हुजूर गौसे पाक के जलसे में बैठे हो पूरी ईमानदारी से मेरी तरफ तवज्जो कर ले, मैं आपसे डिस्टर्ब हो रहा हूँ। पता नहीं आप इधर क्यों देख रहे हैं, इधर कोई चीज है क्या, इधर कोई एलसीडी लगी हुई, इधर ना देखें, आप मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। मैं दिल गुर्दा फेफड़ा सब पेश कर रहा हूँ, बस आपसे मैं इल्तिमास करता हूँ आप जो है ना बस छोटी सी कलेजी पेश कर दें और मोहब्बतों से कह दे जरा सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के जलसे में बैठे हो पूरी ईमानदारी के साथ में बात मुलाहिजा कर लो। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा जिक्र नहीं कर सकता। आज यहाँ हुजूर गौसे पाक का जलसा हो रहा है और आज नहीं बल्कि कई साल से हो रहा है। हुजूर गौसे पाक के दीवाने यहाँ जलसा सुनने भी आते हैं, उलमा को भी बुलाते हैं। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद कामिल है, गौसे पाक चाह रहे हैं बलदेवपुर में मेरा जलसा होता रहे और बलदेवपुर के लोग मेरा जलसा सुनते रहे। अल्लाह अल्लाह हुजूर गौसे पाक हमें अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक अपने मजार से चल करके तशरीफ लाएंगे। अगर कोई दीवाना हुजूर गौसे पाक के
इश्क में यहाँ मचल गया और हुजूर गौसे पाक को उस दीवाने पर प्यार आ गया तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, कब्र भी कामयाब और हश्र भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हो अल्लाह वाले सुनते नहीं है? आप क्या समझते हो अल्लाह वाले मदद नहीं करते हैं? नहीं नहीं, वो तो कोई और है जो कहते हैं अल्लाह वालों से मत मांगो, आप वलियों से मत मांगो अल्लाह अल्लाह। लेकिन हम तो वलियों के दर के गुलाम हैं, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह से हम हर वक्त ये अर्ज करते हैं मौला जब तक जिंदा रहे अल्लाह वालों की मोहब्बत का सदका मिलता रहे, और जब कब्र में पहुंचे तो अल्लाह वालों की मोहब्बत का सदका मिल जाए, और जब मैदानी हश्र में पहुंचे तो अल्लाह वालों की मोहब्बत का सदका मिल जाए। यार हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आप देखें अल्लाह वाले सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। भाईजान आपकी तवज्जो का मैं बिलखुसूस तालिब हूँ, आप मेरी तरफ तवज्जो कर ले। मैं बता देना चाहता हूँ अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे इनकी मोहब्बत का अजर यहाँ भी मिलेगा वहां भी मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। तारीख में एक नाम आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का। अल्लाह अल्लाह। आप जीलान के मशहूर मशाइख में से थे। अल्लाह अल्लाह। काइमुल लाइल साइमुन नहार साबिर शाकिर और जाहिदो मुत्तकी। अल्लाह अल्लाह। आप साहिब करामात वली थे। अजम के मशहूर मशाइख से भी आपने फ्यूजो बरकत हासिल किए हुए थे। आप जब हुजूर सैयदना अब्दुल्ला सोमई की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं। उनमें से एक ये है हजरत अबू अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं एक मर्तबा हमारे बाज अहबाब शहर जीलान से समरकंद की तरफ तिजारत की गर्ज से रवाना हुए। जब ये काफिला समरकंद से पहले एक सहरा में पहुंचा अल्लाह अल्लाह तो इस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया, डाका जनी करने वालों ने घेर लिया, घोड़ा सवारों ने घेर लिया। अल्लाह अल्लाह। अब काफिले वाले बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, क्या करें क्या करें। अल्लाह अल्लाह। काफिले वालों की आंखों से आंसू जारी है, मेरे मालिक क्या करें, हमारा माल लुटने वाला है, वो माल जिस माल की हम तिजारत करते और तिजारत करने के बाद में मालिक तू चाहता तो हमें नफा देता और वो नफे के पैसे हम अपने घर लेकर के जाते, अपने बच्चों की परवरिश करते, अपने माँ बाप की देखभाल करते। अल्लाह अल्लाह। काफिले वालों की आंखों में आंसू हैं, कोई दिल ही दिल में सोच रहा है यार मैं अपने बच्चों से वादा करके आया हूँ जब मेरा माल लुट जाएगा तो मैं कौन सी सूरत अपने बच्चों के सामने लेकर के जाऊंगा। कोई दिल ही दिल में सोच रहा है मैं अपने माँ बाप से वादा करके आया हूँ जब मेरा माल लूट लिया जाएगा तो मैं अपने माँ बाप के सामने कौन सी सूरत लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। काफिले वाले बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। इतने में हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा। बोले जरा सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं कि वलीउल्लाह को पुकारने से कुछ नहीं मिलता, उनसे मदद मांगने से कुछ नहीं मिलता, वो कान खोल करके सुन ले। जब हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा तो मुरीद क्या देखते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई अपने मुरीदों के दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाहु तफर्रकी या खैलु अन्ना। एक घोड़ा सवारो हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ये डाका जनी करने वालों, ये माल लूटने वालों, ये माल को खसब करने वालों, हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के इतने जुमले जब ये घोड़ों के कानों तक पहुंचे हैं तो घोड़े अपने सवारों को चक्कल की तरफ, बयाबा की तरफ, पहाड़ों की तरफ ले भागे और वापस न आ सके। इस तरह से ये सारा काफिला डाका जनी से महफूज हो गया, डाकुओं के शर से महफूज हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब काफिले वाले बड़े खुश हैं, मसरत और शादमानी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमारे माल को लूटने से बचा लिया है, डाकुओं के शर से बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत सैयदना अब्दुल्ला
عبداللہ سمعی کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو تلاش کیا، آپ کی جستجو کی، لیکن آپ کہیں نہ مل سکے۔ اللہ اللہ، یہ سارا قافلہ جو اس سمرقند پہنچا اور اس نے تجارت کی، بہت سارا نفع کمایا، جو جہاں کا تھا وہ وہاں چلا گیا، اور جو جیلان کا تھا وہ جیلان آ گیا۔ اللہ اللہ، اب جیلان والے لوگ جیلان میں آ کر کے ذکر کرنے لگے، لوگوں تم جانتے ہو فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں ہمارا قافلہ لٹنے والا تھا، ہمارے قافلے کو لٹنے سے حضرت سیدنا عبداللہ سمعی نے بچایا تھا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے اتنا سنا، کہنے لگے لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو، فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں تو عبداللہ سمعی ہمارے درمیان موجود تھے، ہم نہیں مان سکتے۔ اللہ اللہ، دونوں گروہ کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا، بات طول پکڑ گئی، بات لمبی ہو گئی۔ اللہ اللہ، کسی نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، دست و گریباں ہونے کی ضرورت نہیں، چلو سیدنا عبداللہ سمعی سے چل کر کے پوچھتے ہیں وہ فلاں تاریخ میں ہمارے درمیان موجود تھے یا تمہارے قافلے کو لٹنے سے بچایا تھا؟ لوگ کہنے لگے چلو چلو چلو، ابھی پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اللہ اللہ، اب سارے لوگ حضرت سیدنا عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، عرض کرنے لگے ہیں اے پیر کامل، ہمارا یہ دعویٰ ہے فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں آپ ہمارے درمیان موجود تھے، اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں ان کے قافلے کو لٹنے سے تم نے بچایا ہے۔ اے پیر کامل، یہ بتا دو کون سچا ہے، یہ بتا دو کون جھوٹا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ سمعی نے اتنا سنا تو مسکرا دیے، بولے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ سمعی ارشاد فرماتے ہیں اچھا راز راز نہ رہا، اچھا راز فاش ہو گیا۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں میں تمہارے درمیان موجود تھا، یہ بات بھی سچی ہے، فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں ان کے قافلے کو لٹنے سے بچایا تھا، یہ بات بھی سچی ہے۔ جب مریدوں نے اتنا سنا تو عرض کرنے لگے اے پیر کامل، ایک وقت میں دو دو جگہ یہ کمال کس طرح کیا؟ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں اس میں میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے، اس میں میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں سمرقند سے پہلے صحرا میں قافلہ لٹنے والا ہے، یہ میں نے اللہ کے نور سے پہچان لیا تھا، معرفت الہی سے پہچان لیا تھا۔ سمرقند سے پہلے صحرا میں پہنچنا یہ عبداللہ سمعی کا کام تھا، اور قافلے کو لٹنے سے بچانا یہ عبداللہ سمعی کے رب کا کام تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پوری ایمانداری سے بتانا، پوری ایمانداری سے، آپ سچے دل سے بتانا، حضور غوث پاک کے جلسے میں بیٹھے ہو، کیا حضور غوث پاک ہمیں ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں؟ حضور غوث پاک ہمیں ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے حضور غوث پاک اپنے مزار سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہم غلاموں کو پہچان بھی رہے ہیں، کون دکھانے کے لیے بیٹھا ہے، کون مجھے منانے کے لیے بیٹھا ہے۔ لوگوں عشق کی بنیاد پر فیصلے ہوا کرتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو تم متکبر ہو گئے تو تم بڑے اچھے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تم مغرور ہو گئے تو تم بڑے اچھے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے بلڈنگیں بنا لی تو تم کامیاب ہو گئے، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس زمین ہے تو تم کامیاب ہو گئے، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس میں پراپرٹی ہے تو تم سے بڑا کامیاب آدمی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، سنیے گا، جس کے اندر عاجزی ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب ہے، جس کے اندر انکساری ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب ہے، جو نمازی ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب ہے، جو روزے رکھنے والا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب ہے، جو قرآن کی تلاوت
तिलावत करने वाला है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। लोग समझ रहे हैं मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। नहीं नहीं, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसका ईमान कामिल है, जो मोमिने कामिल है, वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। और जो मोमिने कामिल होगा वो मुस्तफा के जलसों को आबाद करेगा, वो मस्जिदों को आबाद करेगा, वो मदरसों को आबाद करेगा, वो बेवाओं का ख्याल रखेगा, वो यतीमों का ख्याल रखेगा, वो हराम को हराम जानेगा, वो हलाल को हलाल जानेगा, वो जुएबाजी से दूर रहेगा, शराब नोशी से दूर रहेगा, जुओं के अड्डों से दूर रहेगा। जो ईमान का पुख्ता होगा, जो मोमिने कामिल होगा, वो जमाने की नजरों में नजरें डाल करके कह देगा किसी दुनियादार को खुश नहीं किया जाएगा, अहमद मुख्तार को खुश किया जाएगा। इसलिए के तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोही। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हैं? मेरी बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, बड़े अच्छे अच्छे चले गए, बड़े अच्छे अच्छे, जिनके बड़े टोले शोले थे, जिनकी बड़ी शोहरतें थी कि ये बड़ा ताकत का मालिक है, अल्लाह अल्लाह मौत के फरिश्ते ने उसे पछाड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, हमारी और तुम्हारी हैसियत क्या है? जिंदगी को गुजारना है तो इनकिसारी के साथ में गुजारिए, जिंदगी को गुजारना है तो अच्छे अखलाक के साथ गुजारिए। ये बात याद रखना, जुमले दे करके जा रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर तेरा जनाजा तेरे घर से उठा और तेरे जनाजे में चलने वाले दो लोगों ने कह दिया मरने वाला बड़ा अच्छा था, मरने वाला बड़ा सच्चा था, मरने वाला नमाजी था, मरने वाला मुत्तकी था, मरने वाला परहेजगार था, मरने वाला बड़ों का भी अदब करता था, छोटों पर भी शफकत रखता था। आका इरशाद फरमाते हैं अगर तेरे जनाजे में चलने वाले सिर्फ दो लोगों ने कह दिया मरने वाला नेक था, अल्लाह तेरी जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उन तो कहने वालों की बुनियाद पर अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। अल्लाह, मगरूर और मुतकब्बिर की कोई जिंदगी है? अरे नहीं ना, मगरूर और मुतकब्बिर की कोई जिंदगी नहीं, उसे मिटा दिया जाता है, उसे सफाई हस्ती से खत्म कर दिया जाता है। जिसके अंदर आजिज़ी होती है तारीख उसकी लिखी जाती है, जिसका अखलाक अच्छा होता है तारीख उसकी लिखी जाती है। और लोगों तारीख पढ़ा करो तुम यार, अपने घरों में इस्लामी माहौल को आप पैदा करो। आज देखो हमारे घरों में अंग्रेजी कल्चर है, अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन है। अल्लाह अल्लाह देखें तो आज हमारा मुआशरा, आज देखें आप, अल्लाह अल्लाह कुरान को हमने बालाए ताक कर दिया है, मुस्तफा की सीरत को हमने बालाए ताक कर दिया है। आज हम अंग्रेजों के जो है ना तर्ज अमल पर जिंदगी को गुजार रहे हैं, आज मगरबी तहजीब व तमद्दुन के साथ में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे घरों का माहौल ये हो चुका है, हमारे घरों की जवान जवान बेटियां इंस्टाग्राम पर आइडिया बना बना करके परहना नाच कर रही है। अल्लाह अल्लाह, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, क्या आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं? अल्लाह अल्लाह देखें आज मुस्लिम खातून इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके डांस कर रही है। अल्लाह अल्लाह देखे तो ये तहजीब मिली की बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ अगर अज़रुए शरा खिलाफ काम
अज़रू शरा खिलाफ काम करती है, शरीयत के खिलाफ काम कर रही है, अल्लाह अल्लाह, तो उसका जवाब आपसे लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक खातून को मैदान हश्र में जहन्नम में जाने का ऐलान फरमाएगा तो वो खातून कहेगी, मौला मैं अकेली जहन्नम में ना जाऊंगी, मौला मैं अकेली जहन्नम में ना जाऊंगी, मेरे साथ मेरे बाप को भी जहन्नम में भेज, मेरे साथ मेरे भाई को भी जहन्नम में भेज, मेरे साथ मेरे बेटों को भी जहन्नम में भेज, मेरे साथ मेरे शोहर को भी जहन्नम में भेज। अल्लाह अल्लाह, वो खातून कहेगी, ए रब्बे कायनात, जब मैं गुनाहों के रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजार रही थी तो मेरे बाप ने कभी मुझे ना समझाया, मेरे शोहर ने कभी मुझे ना समझाया, मेरे बेटे ने कभी मुझे ना समझाया, मेरे भाई ने कभी मुझे ना समझाया। लोगों याद रखना, अगर आपके घरों की बेटियां शरीयत के खिलाफ काम कर रही है तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, आप अपने घरों के माहौल को चेंज करिए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पाठ अपने घरों में पढ़ाइए। अल्लाह अल्लाह, देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला किसी को दो बेटियां अता फरमा दे, सुनिएगा बंदेपुर के जिंदा दिल लोगों, आका इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को दो बेटियां अता कर दे और वो दो बेटियों की जो है ना जायज कमा करके परवरिश करके उनकी शादियां कर दे, मुस्तफा फरमाते हैं वो मेरा उम्मती इस तरह मेरे साथ जन्नत में रहेगा जैसे हाथ की दोनों उंगलियां साथ रहती है। लोगों, अगर अपने घरों पर कंट्रोल करोगे, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत अपनी बच्चियों को सिखाओगे तो ये बच्चियां कल तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत बनती हुई नजर आएगी। आका फरमाते हैं, अगर तो बेटियों की शादी कोई मेरा गरीब उम्मती कर दे हलाल तरीके से, मुस्तफा फरमाते हैं मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, जब तक जन्नत में ना जाऊंगा, जब तक अपने उस उम्मती को जन्नत में न लेकर के जाऊंगा। हमारा ईमान है फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा जब तक के हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, और जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखा नहीं जाएगा। और अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट आप देखिए, आपको इधर काम के लिए निकलेंगे, जुमेरात या पीर का दिन जैसे ही आएगा ये मज़ारात पे पहुंचेंगी, ये मज़ारात पर पहुंच रही हैं, एक एक दो दो नहीं, पूरा पूरा झुंड जा रहा है, 12-12, 15-15 का। अल्लाह अल्लाह, पूरा पूरा दिन मजार पे बैठ करके गुजार रही है, पूरा पूरा दिन चुगली में गुजार रही है, पूरा पूरा दिन गीबत में गुजार रही है। अल्लाह अल्लाह, नमाज ज़ोहर गायब कर दी, नमाज असर गायब कर दी, नमाज मगरिब गायब कर दी। अल्लाह अल्लाह, देखें, और ये कह रही है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, चुगलियां तुम कर रही हो, गीबत तुम कर रही हो, पूरा पूरा दिन मजार पे जाकर के अपने वक्त को बर्बाद कर रही हो। अल्लाह ने तुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, तू नमाज पढ़ती तब तेरा मौला तेरी दुआ को कबूल करता। अल्लाह ने तुझे कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है, तू घर की चार दीवारी के अंदर रह करके कुरान पढ़ती। अल्लाह ने तुझे पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, तू पर्दे में रहती। अल्लाह ने तुझे सोमो सलात अदा करने का हुक्म दिया है, तू सोमो सलात को अदा करती और रब्बे कायनात की बारगाह में कुरान पढ़ करके दुआ करती। हाथ नीचे ना आते, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देता। लोगों, तारीख उठा करके देखो, ऐसी ऐसी खातून मजहब इस्लाम में गुजरी है, अगर हाथ उठा दिए दुआ के लिए, हाथ नीचे ना आए, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल कर लिया है। आओ जरा देखो, यही शहर जिलान है। शहर जिलान में एक जात रहती है जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह, आप बड़ी पारसा, बड़ी नेक है, अल्लाह अल्लाह, मुत्तकिया है, जाहिदा है, अल्लाह अल्लाह, वलिया कामिला है। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाक़िया है, शहर जिलान
जिलान के लोगों पर कहत साली वाक़ई हो गई, जमीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया, कुओं में पानी खत्म हो गया, बूढ़े प्यास से सिसकने लगे, जवान प्यास से सिसकने लगे, बच्चे प्यास से मरने लगे। अल्लाह अल्लाह नमाजें पढ़ी जा रही है, दुआएं हो रही है, मौला शेरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमा, मौला शेरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमा। लेकिन शेरे जिलान के लोगों पर बारिश नहीं हो रही है। एक मीटिंग बैठी, फैसला हुआ क्या करें, किसी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी जिलान के अंदर एक सज्जदजादी रहती है, चलो उनसे चल करके दुआ कराते हैं। हमारा ईमान है अल्लाह सज्जदजादों की, सज्जदजादियों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता है। बलदेवपुर के लोगों, बड़े मुबारकबाद के लायक हो, तुम्हारी बस्ती में सज्जदजादे तशरीफ लेकर के आए हैं। अल्लाह अल्लाह सुनिएगा, इन्हीं के घर की बात बताने लगा हूँ। लोगों ने कहा चलो सज्जदजादी के घर पे चलते हैं। अब सारे लोग इकट्ठा होकर के सज्जदजादी के घर पे पहुंचे हैं। दरवाजा खटखटाया है, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद निकल करके आई है, दरवाजे के करीब आई है, इरशाद फरमाया है कौन है। लोग अर्ज करते हैं ए सैयदा तुम्हारी अजमत हमारे सर पर, हम तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम तुम्हारे नाना के गुलाम हैं। सैयदा हम बस इतना अर्ज करना चाहते हैं, शहरे जिलान का हाल तुम बेहतर जानती हो, जमीनें बंजर पड़ गई है, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है, ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है, बूढ़े प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, जवान प्यासे हैं। सैयदा बारिश नहीं हो रही है, हम तुम्हारी बारगाह में बस इतना अर्ज करना चाहते हैं, तुम सज्जदजादी हो, अपने नाना का वसीला दे करके दुआ कर दो, तुम्हारी जो है ना दुआ की बरकत से अल्लाह हम पर रहम फरमाएगा, जरूर बारिश फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। आप अपने घर के सहन में मुसल्ला लाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, नमाज पढ़ने के बाद हाथों को उठा करके दुआ करती हैं, अर्ज करती हैं खालिक कायनात, आज तक सैयदा आयशा ने अपने मफाद के लिए कुछ नहीं मांगा है, अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा है। मौला मेरे नाना की उम्मत बड़ी परेशान है, मौला मेरे नाना की उम्मत भूखी है, मौला मेरे नाना की उम्मत प्यासी है, मौला मेरे नाना की उम्मत पर रहम फरमा, सज्जदजादी की जबान की लाज रख ले, मौला बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे। तारीख रकम है, तारीख गवाह है, अभी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के हाथ नीचे ना आए थे, अल्लाह ने जिलान के लोगों पर बारिश करना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह, ये सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी जिनकी दुआ की बरकत से शहरे जिलान के लोगों पर बारिश हो रही है। लोगों तवज्जो करना, ये जात कोई और नहीं बल्कि महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शहवाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सगी फूफी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने जिलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। हम गुलामों को ईमान मिला है, जब फूफी की दुआ का ये आलम है तो गौसे पाक की दुआ का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की 11वीं खा करके कह रहे हैं कौन गौसे पाक, कौन ख्वाजा गरीब नवाज, कौन साबिर पाक, कौन मखदूम पाक, कौन आला हजरत, कौन वारिस पाक, कौन मदार पाक। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कौन गौसे पाक। सुनिएगा मैं बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह, एक रमजान 470 या 71 हिजरी को पैदा होने वाले को दुनिया गौसे आजम कहती है। बोले जरा सुभान अल्लाह। जो पैदा होते ही रोजा रखे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसके साथ पैदा होने वाले बच्चों को अल्लाह वली बना दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी विलायत की गवाही फरिश्ते दे दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो चोर को अब
दाल बना दे, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो ठोकर मार कर कुंबे इज़्निल्लाह फरमा कर मुर्दों को जिंदा फरमा दे, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो 15 साल तक एक टांग पर एक रात में खत्मे कुरान करता रहे, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता रहे, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसका नाना वली हो, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसका बाबा वली हो, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी सगी फूफी वलिया कामिला हो, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी वालिदा माजिदा वलिया कामिला हो, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसके शहजादे वली हो, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो मादरे शिकम में आधा कुरान हिफ्ज कर ले, दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। तुम कहते हो कौन गौसे आजम, तो आला हजरत की ज़बानी सुनो। आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, लाखों सलाम। सलाम। गौसे पाक के जलसे में बैठे, सुभान गौसे पाक के बेटे आपके जलसे में तशरीफ लाए।